मथुरा में धर्म संसद में जुटे श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार और साधु संत बोले, जब तक मस्जिद नहीं हटेगी तब तक करते रहेंगे संघर्ष, सनातनी भाइयों को भी जगाने का करेंगे काम। राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल बोले, पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं, छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है। अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पहली लिस्ट जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी कांग्रेस से आए 6 नेताओं को मिला टिकट। सेंट्रल फोर्स की 8 और कंपनियां पहुंची मणिपुर, एक कंपनी महिला बटालियन की शामिल। आपको बता दें, मणिपुर कांग्रेस की खड़गे को चिट्ठी, चिदम्बरम पर एक्शन ले। दिल्ली में पॉल्यूशन AQI 400 से गिरकर हुआ 379, यह भी गंभीर। दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा, ऑनलाइन पटाखे बेचना तुरंत बंद करें। MP, राजस्थान सहित 4 राज्यों में घना कोहरा, जयपुर में दिन में भी धुंध, 2 दिन स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मीडिया में आई हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि प्रदूषित हवा में सांस लेना रोजाना कई सिगरेट पीने के बराबर है। यह दावा अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की एक रिसर्च के आधार पर किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि हवा में प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से लोगों को प्रतिदिन 20 से ज़्यादा सिगरेट पीने के बराबर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस समय भीषण पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। मीडिया में आई हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि प्रदूषित हवा में सांस लेना रोजाना कई सिगरेट पीने के बराबर है। ये दावा अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की एक रिसर्च के आधार पर किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि हवा में प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से लोगों को प्रतिदिन 20 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर नुकसान हो रहा है। Wrong, but it was way back in around 15 years back that scientists from Berkeley Earth, these are Richard and Elizabeth Mueller, the father and daughter duo, they actually scientifically devised, after looking at various samples and of the air pollutants, that almost one cigarette is equal to the 22 microgram per millimeter. So if you put it in short, that if you are having, say, a AQI of 500 on average over a day, then it's almost equivalent to 25 cigarettes. So that's what the equivalence was drawn depending on the data which they collected. Now, obviously, you cannot exactly parallel it to a smoke because the pollutants in the air, when you have this large air pollution like it is occurring now, are different and quite the effects are different than the particles which are inhaled when you smoke a cigarette. डॉक्टरों के मुताबिक सिगरेट के धुएं और हवा में प्रदूषण दोनों में हानिकारक पदार्थ होते हैं जो फेफड़ों के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। सिगरेट या तंबाकू के धुएं से कार्सिनोजेन और दूसरे जहरीले पदार्थ निकलते हैं, जबकि प्रदूषित हवा में सांस लेने से दिल और सांस से जुड़ी बीमारी हो सकती है। So, though tobacco smoking contains nicotine and many other harmful things which directly link to cancer, carcinogenic substances. But apart from that, the gases which are produced, apart from that, the soot particles or the particulate matter that are there are almost same. So, initial symptoms like coughing, irritation in eyes, throat congestion, nose block, both due to cigarette smoking or due to pollution, both can have same symptoms. So both the diseases, they can lead to a condition called chronic obstructive pulmonary disease or COPD. So patients who have been smokers for a long time and continue to smoke, they have these permanent changes in their lung which can lead to destruction of the lung structure, and the tubes become blocked with mucus. A similar effect can happen to a person who is exposed to very high degree of pollution, particularly in these areas. Now, there is a considerable area of overlap between the two. So, somebody who's already been a smoker and is also exposed to pollution is going to have more effects compared to a person who's not been a smoker or who's been otherwise healthy.
but there is almost a similar kind of picture which can happen, both in smokers as well as to those who can have high degree of exposure to pollutants, which is called COPD. ज्यादातर डॉक्टर यही मानते हैं कि प्रदूषित वायु में सांस लेना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। इस तरह के माहौल में सांस लेने से स्वस्थ लोगों के दिल और फेफड़ों के काम करने पर असर पड़ सकता है। डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि इस तरह की दिक्कतों से बचाव के लिए तत्काल उपायों की दरकार है, जिससे प्रदूषण किसी की जान पर भारी ना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस से हाल ही में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप में शामिल हुए 6 नेताओं को टिकट मिला है। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी हाल ही में बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए थे, जबकि सीलमपुर से जुबेर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान और मटियाला से सुमेर शौकीन ने कांग्रेस छोड़ने के बाद आपका दामन पकड़ा था। बाकी उम्मीदवारों में रोहतास नगर से सरिता सिंह, बदरपुर से राम सिंह ने, खोड़ा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी पर विश्वास जताया गया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सुबह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी पीएसी की बैठक हुई, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया गया। जिन 11 उम्मीदवारों के नाम किए गए उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर अभी आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अडानी समूह ने अमेरिकी अधिकारियों की रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज कर इन्हें निराधार बताया है और कहा है कि समूह सभी कानूनों का पालन करता रहा है। आपको बता दें, उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में सौर बिजली के ठेके हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को $25 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया। समूह ने कहा कि वो इस मामले में सभी कानून विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। अडानी समूह के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूत और विनिमय आयोग के अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और इन्हें खारिज करते हैं। साथ ही इस पर राहुल गांधी ने अडानी पर निशाना साधा। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। रुक करेंगे अगली खबर का खबर गुरुग्राम से, जहां गुरुग्राम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक होती नजर आई है। आपको बता दें, जब गुरुग्राम का रूट लगा तो उस वक्त उनके काफिले के बीच में एक सवारियों से भरा ऑटो जा घुसा। ये सब उस वक्त हुआ जब सीएम नायब सिंह सैनी सेक्टर 29 जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने ऑटो को साइड में
रुकवा दिया और सीएम नायब सैनी के काफिले को जाने के लिए रास्ता दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुलिस कस्टडी में खड़े ये दोनों वही साथी बदमाश है जो विगत 11 नवंबर को रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावल स्थित कोमल ज्वेलर्स के शुरू में दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों के जेवरात व नकदी लूटकर फरार हो गए थे, जिन्हें रेवाड़ी पुलिस की 5 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनमें इनके 2 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लोगों को पता होगा 11 नवंबर 2024 को बावड़ में जो नूनकरण गेट के पास कोमल ज्वेलर्स की दुकान है, उस पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के अंदर घुस के और फायरिंग करके कुछ जेवरात और पैसे लूट के लेके गए। और इस दौरान उनकी फायरिंग में एक जो ज्वेलर्स का लड़का था हरेंद्र, वो भी घायल हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत एसपी साहब रेवाड़ी श्री गौरवराज पुरोहित जी भी स्वयं भी तुरंत मौके पे पहुंचे थे और सभी सीआईए टीम भी पहुंची थी। और उसी दौरान एसपी साहब ने तुरंत टीमों का गठन करके और दिशा निर्देश दिए थे कि जल्दी जल्दी इस मुकदमे को ट्रेस किया जाए। करीबन 5 टीमें एसपी साहब द्वारा गठित की गई थी, जिसमें सीआईए रेवाड़ी, सीआईए धारुएड़ा, सीआईए कोसड़ी, एसएचओ बावड़ और जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। और इस पे काम करते आज वारदात करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमने सफलता हासिल की। कौन लोग हैं सर, कहाँ के रहने वाले हैं? जो 2 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं उनमें से एक वेदपाल है जो हाजीपुर पातली फरूखनगर का रहने वाला है, दूसरा सचिन है जो सूर्यनगर रोहतक का रहने वाला है। और इसमें बता दें कि जो वेदपाल जो अक्यूज्ड है ये पहले मर्डर के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा इसको हो चुकी है तथा ये पैरोल पे बाहर आया था 2023 में, जून 2023 में, तथा उसके बाद ये वापस नहीं गया और पैरोल जम पे ये चल रहा था। पर कहाँ चल रहा था ये मामला जो उम्र कैद की सजा सुनाई थी? ये फरूखनगर थाने का मामला था और 2016 में अपने गांव के ही कुछ इसने वारदात करके और मर्डर किया था और उसमें 2019 में इसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जिसमें ये सज़ा काट रहा था। दूसरा आरोप है कि उस पर कोई मुकदमा दर्ज है? पहले उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, उस पर ये पहला ही मुकदमा। सर टोटल कितने लोग थे जो ये वारदात में अंजाम दिया, कितने लोग थे और जिसमें आप पहले 2 गिरफ्तार कर लिए? अब तक की हमारी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इसमें टोटल 4 लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, जिसमें 3 लोग तो वारदात के समय दुकान के अंदर ही घुसे थे तथा इनका एक दोस्त थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ था इनके हेल्प के लिए। और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आज इनको कोर्ट में पेश करके और पुलिस रिमांड लिया जाएगा। मानसून की वापसी के बाद सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है। लंबे समय से जारी सूखे ने किसानों के बीच अपनी फसलों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी। खाद्यान्न और दूसरी नकदी फसलों की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी है। ऐसे में पिछले 2 महीनों से बारिश नहीं होने से पूरे राज्य में फसल उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश मानसून की वापसी के बाद सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है। लंबे समय से जारी सूखे ने किसानों के बीच अपनी फसलों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। खाद्यान्न और दूसरी नकदी फसलों की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी है। ऐसे में पिछले 2 महीनों से बारिश नहीं होने से पूरे राज्य में फसल उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो परेशानी नहीं, पहले तो मौसम ही नहीं चला। जब मौसम चला थोड़ा बीच में तो मतलब ज्यादा बरसात हो गई तो किसानों का तो ऐसा, उसके बाद सूखा पड़ गया। थोड़ी जैसे लोगों ने गोभियां लगाई थी या बीन मटर लगाया था तो पहले वो जमा ही नहीं, बाद में थोड़ा थोड़ा जमा वो सूख गया। कुंडलों के हिसाब से लोगों ने बीज डाला, बोले को कुछ मिला नहीं। मौसम कोई 2.5-3 महीने तो बिल्कुल मौसम से क्लियर हो गए, तो अब मौसम के ही निर्भर है सब लोग। अधिकारियों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में लगभग 80% खेती बारिश पर निर्भर है और सिर्फ 20% जमीन पर ही सिंचाई सुविधाएं मौजूद हैं। खुश्क हालात की वजह से बहुत कम संख्या में सिर्फ उन्हीं खेतों में बुवाई हो पाई है जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद है। लगभग 20% के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है वो सिंचाई युक्त है और लगभग 80% का जो क्षेत्र है हमारा जो असिंचित है और हम वर्षा पर उस पर निर्भर रहते हैं। अभी कितने परसेंट बुआई हुई है? हम कुल मिलाकर के हिमाचल की एवरेज की बात करें तो लगभग 32 से 35% तक की जो बिजाई जो है हिमाचल में हो चुकी है। और साल की अपेक्षा कम
पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वक्त थोड़ी कम हुई है, इसलिए क्योंकि पिछली बार इतना लगातार सूखा नहीं रहा था। निराश किसानों का कहना है कि मानसून सीजन के दौरान बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ। वहीं इस वक्त बारिश की कमी से फसलें सूख रही हैं। परेशानी एक तो सूखा पड़ा है जी, दूसरा जो है पहले जब बिजाई की लोगों ने उस टाइम जो बारिश पड़ गई ऊपर से, वो बीज सड़ गया नीचे, वो जमा ही नहीं किसी के, जो कुछ जमा था वो खराब हो गया सूखे में। सूखे से बहुत नुकसान है। सूखे से नुकसान ही हो गया, जीरो रिपोर्ट है। बारिश का इंतजार है। क्या सिंचाई का कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं। किसान सरकार से खुश्क इलाकों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने की अपील कर रहे हैं ताकि आगे और ज्यादा नुकसान को रोका जा सके। मौसम इस बार बहुत ये हुआ है, पहले तो बरसाती बहुत चली, उसके बाद एकदम सूखा पड़ गया तो जिस टाइम फसल लगी हुई थी वो भी सड़ गई उसके बाद, जो सूखे पड़ने के कारण। सरकार से तो यही डिमांड है कि सिंचाई का साधन तो होना चाहिए, वैसे किसान के लिए तो बड़ी दिक्कत है वैसे। जानकारों के मुताबिक अगर नवंबर के आखिर तक बारिश हो जाती है तो सूखे के असर को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर तब तक बारिश नहीं होती है तो फसलों की पैदावार को काफी नुकसान होगा। अब रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। जम्मू कश्मीर में यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के बीच स्कूली शिक्षा विभाग ने भी अब सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्कूली बच्चों के वाहन से लेकर स्कूल या कोचिंग सेंटर आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। विभाग ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अपने निजी दोपहिया या चार पहिया वाहन से स्कूल आएगा तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने नाबालिग छात्रों के गाड़ियां चलाने पर रोक लगा दी है। स्कूल जाने के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर भी रोक लग गई है। पिछले हफ्ते श्रीनगर में एक हादसे के बाद ये फैसला लिया गया है। हादसे में 2 किशोरों की मौत हो गई थी और 2 घायल हो गए थे। उनकी कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई थी। स्कूल के शिक्षकों और प्रशासकों ने इस आदेश का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये आदेश काफी पहले दिया जाना चाहिए था। देखिए, ऑर्डर तो काफी अच्छा निकाला इन्होंने और ये आज नहीं काफी पहले से ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी में बच्चा है, जो मेजर एज अटेन नहीं किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो रैश ड्राइविंग तो करते ही हैं और जिसके कारण काफी इंसिडेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली कई बच्चों की डेथ भी हो गई, तो जिसके कारण उनका तो कुछ नहीं जाता बट माँ बाप काफी सफर करते हैं। तो इसलिए ये ऑर्डर काफी अच्छा है और ये इम्प्लीमेंटेशन हो इसका अच्छा। अब एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ है, उसके बाद ऑर्डर हुआ है, इम्प्लीमेंट हुई ये चीजें कि बच्चे नहीं लेके आएंगे। हमारी स्कूल मैनेजमेंट है, ये काफी देर से ये बच्चों को पेरेंट्स से भी बात करती रहती है कि बच्चे को बाइक या गाड़ी के लिए 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस नहीं है। विदाउट लाइसेंस नहीं चलाना है। सोसाइटी के लिए, उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए वो अच्छी चीज नहीं है। अभिभावकों ने भी इस आदेश का स्वागत किया है। उनका कहना है कि स्कूलों और अभिभावकों को नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने से रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जब स्कूल में आते हैं बच्चे, मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, गाड़ी आगे पीछे रेस लगाते हैं। दोपहर को जब छुट्टी होती है तब देखो इधर आके इतना वो बोल्ट के पटाखे उड़ाते रहते हैं और रेस लगाते हैं। कोई किसी का बच्चा कुछ एक्सपायर हो जाए तो बाद दुख तो पेरेंट्स को ही होता है। तो इसलिए जो ऑर्डर निकाला है हम उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके साथ ही हम। स्कूल डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर ने जो ऑर्डर निकाला बहुत अच्छा ऑर्डर निकला है। ये यहाँ से कंट्रोल हो सकता था। पुलिस या ट्रैफिक पुलिस कितने तक कंट्रोल कर सकती है, कितने लोग छोटी गलियों से बचे। अगर स्कूल से ये काम सख्ती होगी तो अच्छा होगा। स्कूल को ही ज़्यादा पेरेंट्स और स्कूल दोनों अगर आपस में करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। आदेश में स्कूलों से कहा गया है कि वे कार या बाइक चलाने वाले छात्रों को कैंपस में न घुसने दें। स्कूलों ने आदेश का पालन करने के लिए गेट पर कर्मचारियों को तैनात किया है। अधिकारियों ने माता पिता से बच्चों को गाड़ियां न देने और नियम को लागू करने में सहयोग करने का आग्रह किया है। नोटिस है 18 से नीचे किसी के पास भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए। फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अहम खबर, जहां संदिग्ध हालातों में कक्षा 4 का छात्र लापता हुआ है। स्कूल में छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंचा मासूम। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र साहिल लापता हुआ। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। परिजनों ने छात्र के लापता होने की पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी छात्र की खोजबीन में जुटी हुई है। कस्बा स्थित कमनी तालाब मोहल्ले का ये पूरा मामला है। अगली अहम खबर मिर्जापुर से, जहां 20,000 रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार हुआ। विजिलेंस की टीम ने 20,000 रिश्वत लेते बाबू को पकड़ा है। मौनी स्वामी इंटर कॉलेज के बाबू को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम ने बाबू अमित कुमार को पकड़ा है। 2 महीने से रुका वेतन पास कराने के लिए रिश्वत ली थी। पीड़ित ने विजिलेंस टीम से की थी शिकायत। पैसे लेते बाबू अमित को गिरफ्तार किया गया है। जिगना थाना क्षेत्र के श्रीनिवास धाम कॉलेज का ये पूरा मामला है। अगली खबर बाराबंकी से, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में एएनटीएफ थाना बाराबंकी की टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 सक्रिय तस्करों को गाजीपुर से पकड़ा है। इनके पास से मादक पदार्थ की बड़ी खेप जब्त हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम 7:55 पर ओडिहार रेलवे स्टेशन के बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाग हेतु 56 देशों से पधारे मुख्य न्यायाधीशों व कानूनविदों समेत विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, संसद के अध्यक्ष, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश आदि प्रख्यात हस्तियों के आज देर शाम लखनऊ पधारने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बतौर मुख्य अतिथि हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मौर्य ने कहा कि दुनिया भर से पधारे न्यायविदों व कानूनविदों की उपस्थिति ने न सिर्फ लखनऊ के गौरव को विश्व पटल पर आलोकित किया है, अपितु दुनिया के देशों को ये संदेश भी दिया है कि एकता व शांति का कोई विकल्प नहीं है और यही वो जरिया है जिसमें भावी पीढ़ी का उज्जवल भविष्य निहित है। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 से 24 नवंबर तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित यह ऐतिहासिक सम्मेलन विश्व एकता, विश्व शांति एवं विश्व के 2.5 अरब से अधिक बच्चों के सुंदर एवं सुरक्षित भविष्य को समर्पित है। इस वर्ष यह ऐतिहासिक सम्मेलन ये गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर थीम पर आधारित है। जो मुख्य ब्रांच राजाजीपुरम है, इस परिसर में महान शिक्षाविद स्वर्गीय जगदीश गांधी जी अब इस धराधाम पर नहीं हैं, लेकिन वह सदा यहाँ पर रहेंगे। वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सेमिनार करते थे। आज 25वां कार्यक्रम है, 25वां सेमिनार ये संपन्न होने जा रहा है, जिसका हिस्सा बनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सबसे पहले तो मैं गांधी जी को याद करता हूँ कि उन्होंने वह काम किया है जो दुनिया के कुछ गिने चुने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए होंगे उस श्रेणी के लोगों में हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी है कि यह यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक जाएगी। एक और अहम सवाल है सर, आज आपने ट्वीट करा आजादी को लेकर के, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं श्री राहुल गांधी जी के द्वारा वो देश का मान सम्मान कभी ध्यान नहीं रखते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको देश ही नहीं दुनिया भी चाहती है, मानती है और उनसे कुछ सीखना चाहती है, उनके बारे में सदैव गैर जिम्मेदाराना बयान नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी कर रहे हैं और एक नहीं अनेक बार उन्होंने बयानबाजी की है। तो मैं समझता हूं कि यह उनका बचकाना आचरण और भाजपा विरोधी माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध की जो उनकी ओछी मानसिकता है उससे उन्होंने उजागर किया है।
और कांग्रेस को इसके लिए देश से क्षमा मांगना चाहिए। कोई व्यापार कर रहा हो, चाहे अन्य कोई कार्य कर रहा हो, कोई गलती करेगा तो कानून उस पर अपने हिसाब से काम करेगा। कभी राफेल में अडानी अंबानी की बात करके प्रधानमंत्री जी को निशाना बनाते हैं, तो कभी अन्य किसी भी मामले में चुनाव प्रचार की सभाओं में ऐसा निशाना बनाते हैं, तो यह कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं श्री राहुल गांधी जी के बयानों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और वह देश से माफी मांगे, ऐसी मांग करता हूं। अगली खबर का रुख करेंगे फर्रुखाबाद से। अगली खबर जहां अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से 2 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 बाइक सवार घायल हो गए थे। पिकअप की टक्कर लगने से 2 बाइक सवार शिवाभिषेक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक बाइक सवार आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सहायता से तीनों को CSC कमालगंज भेजा गया। एक घायल का CSC में इलाज जारी है। घटना की सूचना पर पहुंची परिजनों में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर अंडर ट्रेनी CO अजय वर्मा व थाना अध्यक्ष अनुराग मिश्र ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। अपनी दीदी के आज सुबह और पापा रिटर्न जा रहे थे खुदागंज जा रहे थे। तो ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों एक पट्टिया गए खुदागंज के साथ। तो ये किससे टक्कर हुई है? ये लोडर पे हुई है। लोडर से? तो लोडर क्या भाग गया क्या? लोडर भाग गया सर। लोडर भाग गया है। तो क्या अस्पताल ले गए? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने दोनों एक्सपायर हो गए। यही बताया। इनका क्या नाम है? एक शिवा है और दूसरा क्या नाम है? अभिषेक। तो अच्छा, शिवा कहाँ रहने वाला है? और अभिषेक पट्टी का सादर पट्टी कहने वाला। तो लोडर है वहीं पे भाग गया? लोडर भाग गया सर, कोई जानकारी नहीं। उसकी नंबर है मेरे पास, नंबर दिया है क्रॉसिंग वालों ने। अच्छा, क्रॉसिंग नंबर दिया है। तो ये कहाँ पट्टिया हुआ क्या? हाँ, पट्टिया गुमटी साल। यहाँ पर एक जो घायल लाया गया है, एक्सीडेंटल केस है, और ये आकाश नाम का जो एक घायल लाया गया वो एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया था, और उसके चेहरे पर और हाथ पैरों में काफ़ी चोटें आई हैं रगड़ की, तो उसका यहाँ इलाज चल रहा है। और ये जो 2 लोग आए हैं, ये अपने स्वयं के वाहन से आए हैं, जिनका नाम शिवा और अभिषेक है। ये जब यहाँ लाए गए तो ये मृत अवस्था में ही यहाँ थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के नवीन पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी चीनी मिल प्रबंधक समिति के सभापति डॉक्टर BK सिंह के कर कमलों द्वारा हवन यज्ञ पूजन कर किया जाएगा। जानकारी हेतु चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ करने हेतु मिल द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। मिल चलाने हेतु मशीनों का ट्रायल शुरू हो गया है। इसके साथ ही चीनी मिल द्वारा गन्ना पेराई कार्य शुरू करने की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर गन्ना खरीद के लिए इंटेंट जारी कर दिया गया है। चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ चीनी मिल प्रबंधक समिति के सभापति जिलाधिकारी डॉक्टर BK सिंह के कर कमलों द्वारा 23 नवंबर को हवन पूजन व फीता काट कर किया जाएगा। जो 2024-25 के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, कब से नवीन पेराई सत्र आपका प्रारंभ हो रहा है? तैयारी चीनी मिल की पूर्ण हो चुकी हैं और ट्रायल का कार्य किया जा रहा है, और 23 नवंबर को उद्घाटन जिलाधिकारी या प्रशासन महोदय द्वारा किया जाएगा। तो क्या क्या अभी तैयार हो चुके हैं और बॉयलर का प्रश्न उठाया जा रहा है आज, और टरबाइन कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। ये पर्चियां किसानों को कब भेजी जाएंगी? इंडेंट जारी किया जा चुका है, 24, 25, 26 3 दिन का इंडेंट जारी किया जा चुका है। अगली खबर कानपुर से, जहां श्री मद्भागवत गीता वैदिक न्यास द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में स्थापित श्री मद्भागवत गीता वैदिक शोध पीठ एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार के संयुक्त तत्वाधान में आज विश्वविद्यालय में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में विशाल शिक्षक गर्भ सम्मेलन का आयोजन। मुख्य वक्ता प्रमोद भटनागर, केंद्रीय प्रतिनिधि शांति कुंज हरिद्वार, स्वामी नीलमणि कृष्णदास जी इस्कॉन प्रमुख द्वारा अपने ओजस्वी उद्बोधन में शिक्षक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग विधाता विषयक सम्मेलन अपने उद्बोधन द्वारा शिक्षक एवं छात्रों के राष्ट्र समाज एवं धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराकर राष्ट्र हित एवं समाज हित हेतु सर्वस्व समर्पण की बात कही गई। श्रीमद् भगवत गीता वैदिक न्यास द्वारा आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन गीता श्लोक एवं गायत्री मंत्रों के समवेत स्वरों द्वारा डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, डॉक्टर प्रदीप भटनागर,
स्वामी नीलमणि कृष्णदास जी, श्री भवानी वीक जी, प्रोफेसर विनय पाठक, डॉक्टर उमेश पालीवाल एवं अन्य गणमान्य द्वारा प्रारंभ किया गया। शिक्षक गरिमा सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रदीप भटनागर ने शिक्षक की गरिमा एवं छात्रों के प्रति कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा कर आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों को अपग्रेड होते हुए संस्कारवान एवं राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आधुनिकता एवं अध्यात्म के समन्वय के साथ छात्रों को शिक्षा देने पर सार दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एएसपी डॉक्टर संजय सिंह ने वाहन चालकों को गुलाब देकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। नवंबर माह में यातायात सड़क सुरक्षा माह के चलते वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। शहर के लालगेट पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने यातायात प्रभारी सत्येंद्र सिंह फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस थाना कादरी गेट पुलिस संघ अभियान चलाया। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों को गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी। बिना सीट बेल्ट लगाए कार चालकों को भी एएसपी ने गुलाब का फूल देकर नियमों का पालन करने की हिदायत दी। एएसपी डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर नई पहल की गई है। लालगेट पे अभियान चलाया है, किस विषय में लेके अभियान? यातायात का माह नवंबर माह में मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी कादरी गेट और द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। उसके साथ साथ जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल वाले थे उनको हिदायत। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज आबकारी आयुक्त यूपी लखनऊ के आदेश एवं जिलाधिकारी फर्रुखाबाद डॉक्टर बीके सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी गुरु प्रसाद गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 राजेश कुमार चौबे द्वारा अपनी टीम व कायमगंज कोतवाली पुलिस बल के साथ कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के असंदिग्ध ग्राम श्यामनगर में अचानक छापेमारी कर लगभग 140 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया तथा 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसके उपरांत आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार चौबे द्वारा कायमगंज स्थित आबकारी दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। अगली खबर जालौन से है, जहां कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जालौन में पिछले 48 घंटे में अलग अलग स्थान पर 2 हत्याओं को अंजाम दिया गया। मामले को लेकर पुलिस ने तीव्रता दिखाते हुए हत्या आरोपियों को आला कत्ल के साथ बड़ी चतुराई से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों ने हत्या को कबूला है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने बताया कि मछली का व्यापार करने वाले लोग शराब पार्टी मना रहे थे। शराब पार्टी के बाद दोनों में वाद विवाद हो गया और इसमें एक साथी के साथ मिलकर साबिर उर्फ मुन्ना का कत्ल कर दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाने पर ये सूचना मिली कि ग्राम सैद नगर में एक खाली प्लाट में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना पुलिस ने तुरंत रिएक्ट किया। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। पहचान के दौरान ये पता लगा उसी ग्राम सैद नगर के ही निवासी साबिर उर्फ मुन्ना, जिनकी उम्र लगभग 42 साल थी, ये उनका शव है। अगली खबर बलिया से है, जहां रेवती पुलिस ने टीएस बंधा के श्रीनगर हनुमान चबूतरा के पास से बोलेरो पिकअप से 103 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है। रेवती थाना अध्यक्ष रोहन राकेश सिंह ने बताया कि श्रीनगर निवासी मार्कंडेय यादव और भरत यादव शराब तस्करी करने के लिए जा रहे थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में आबकारी इंस्पेक्टर संदीप यादव, एएसआई रेवती आशुतोष मदेशिया, संतराज यादव, गौरव प्रकाश सरोज तथा महिला सिपाही सुनैना देवी शामिल रहीं। अगली खबर का रुख करेंगे। ग्राम समाज की जमीन खाली कराए जाने से गुस्साए दबंगों ने ग्राम प्रधान पति को फोन पर जाति सूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने प्रगतिशील अनुसूचित जाति ग्राम प्रधान एसोसिएशन से जुड़े प्रधानों के साथ सीओ बेहट को शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है।
समय लगभग 11:49 का मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसने अपना नाम दीपक सैनी और गांव सलेमपुर, और ये बोला कि मेरा भाई जज है और मैं यहाँ अपने गांव में ग्राम समाजी ज़मीन पे लंबे गाड़ रहा हूँ, और अगर आपकी हिम्मत है आप तो आप रुकवा लेना। पुलिस प्रशासन सब मेरे हाथ में है और ये मेरा घर है। फिर उसने इसी तरह अवैध भाषा का इस्तेमाल किया, गालियाँ दी और जाति शब्द बोले। आप किसको शिकायत की है? मैंने सब पूरा उसी टाइम इंस्पेक्टर मिर्जापुर को कॉल मिलाया और दीपक सैनी से बात करी, दूसरे फोन पे इंस्पेक्टर साहब ने उसको बोला कि भाई अगर तेरी वहाँ जमीन है तो गाड़ी लेके यहाँ जा। आज किससे मिले हैं? ICO साहब से मिले हैं, क्योंकि थाने से कल पूरा दिन थाने में लगा है। थाने ने यहाँ CO के यहाँ भेज दी कि भाई SC का मामला है, आप CO साहब से मिले जाके। क्या आश्वासन मिला है? फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के गांव पपसरा खादर निवासी आजाद आज गुरुवार दोपहर अमरोहा SP कुंवर अनुपम सिंह के पास पहुंचे। इस दौरान आजाद ने बताया कि 17 नवंबर को गांव के दबंगों ने हमारे घर में घुसकर हम पर लाठी डंडों तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिस पर पुलिस ने हमारे परिवार के 2 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया और हमारे परिवार के एक मृतक युवक के नाम पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। मारपीट का वीडियो हमारे पास है, लेकिन गजरौला पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। SP कुंवर अनुपम सिंह से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। SP कुंवर अनुपम सिंह ने गजरौला थाना प्रभारी को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट भरतकूप के कोल्हुआ में चाय की गुमटी में मृत अवस्था में मिला वहीं परिजनों ने एक शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें मामला भरतकूप थाना अंतर्गत कोल्हुआ गांव का गुरुवार की सुबह लगभग 6 बजे का है, जहां 36 वर्षीय मृतक किशोरी लाल पुत्र हजारी लाल के परिजनों ने बताया कि बीते बुधवार की शाम लगभग 4 बजे सर्वेश यादव नाम का युवक किशोरी लाल को अपने साथ बघेलावारी बाइक से लेकर गया था और शाम लगभग 6 बजे शराब के नशे में लेकर आया। किशोरी लाल को घर के कुछ दूर किशोरी लाल की चाय नाश्ते की गुमटी में छोड़कर चला गया। दुकान में मृतक की पत्नी मंजू थी, जो किशोरी लाल को नशे की हालत में दुकान में ही छोड़कर लगभग 7 बजे घर चली आई। किशोरी लाल नशे की हालत में दुकान में ही रात भर पड़ा रहा। तभी गुरुवार की सुबह लगभग 6 बजे मृतक का भाई ओम प्रकाश दुकान पर पहुंचा तो उसको पूरी घटना की जानकारी हुई। घटना ये हुई थी कि शाम करीबन 4 बजे के बाद वो सर्वेश नाम का व्यक्ति है, वो लेके गया था हमारे भाई को शराब पिलवाने के लिए बघेलेवारी। इसके बाद वो लौटा, करीबन 5-6 बजे के आसपास लौटा होगा। इसके बाद वो लौटा तो वहाँ पे भाभी लोग दुकान में थी, तो भाभी 7 बजे के आसपास वो बंद करके चली गई दुकान, और शराब का नशे में इतना भाई था, चोर था कि उसका हालत खराब थी। इसके बाद वो भाभी चली गई कि जब होश आएगा वो अपने आप चला आएगा, होश आने के बाद वो चला आता है। तो जब नहीं पहुँचा तो सर्वेश नाम का व्यक्ति जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ था। पिलवाने के बाद वो चला गया। इसके बाद आया तो अकेले बैठा हुआ था। मैंने भाई को नहीं देखा है कि नहीं, लेकिन अकेले झोपड़ी के हमारे वहाँ पे बैठा हुआ था। आज प्रातःकाल थाना प्रभारी भरतकूप को जरिए दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि उनके थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में किशोरी लाल कहार की चाय की दुकान में किशोरी लाल का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये लगा कि गले में लिगेचर मार्क है। उनके भाई, परिवार और सारे लोग इकट्ठा हुए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल निरीक्षण किया, फील्ड यूनिट भी पहुंची। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के इंदिरा नगर में शुभ ज्वेलर्स की दुकान में डाका डालने वाले 7 लोगों में से पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें लूट का सामान बरामद किया। पुलिस का दावा है कि मूल रूप से असम राज्य के रहने वाले लोगों ने रेकी करने के बाद शुभ ज्वेलर्स में आधी रात को 7 लोगों ने मिलकर शोरूम का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने CCTV की मदद से घटना में शामिल लखनऊ के अलग अलग इलाकों में बसेरा डाले हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2 नवंबर की रात को इंदिरा नगर के शुगा मऊ चौराहे स्थित प्रांजल हाइट की बिल्डिंग में के बेसमेंट में बनी शुभ ज्वेलर्स की दुकान में रात को चोर शटर तोड़कर अंदर घुस गए और दुकान में रखे सोने की कीमती जेवर और 15 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। सुबह चोरी की घटना CCTV
में चेक किया गया तो 4 लोग दुकान का शटर सबल से तोड़ते नजर आए। जांच में जुटी इंदिरानगर पुलिस और क्राइम टीम ने सीसीटीवी के माध्यम से घटना में शामिल लोगों को का पता लगाया। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लेकिन सभी लोग असम राज्य के रहने वाले हैं जो लखनऊ में फेरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसके साथ ही सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम और उत्तरी जोन की जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनके द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। घटना कारित करने में कुल 7 लोगों का नाम प्रकाश में आया। जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं उनके नाम हैं जमाल उर्फ जमाली, दूसरा है फूलचंद, तीसरा रफीकुल इस्लाम और चौथा मुफीस। इन 4 की गिरफ्तारी हुई है। 3 अभियुक्त मुन्ना हुसैन, मुल्ला इकरार और बाबुल ये अभी वांछित हैं जिनकी तलाश जारी है। सभी अभियुक्त जो इनका संबंध है वो असम से है और इनके जो मेन अभियुक्त है जमाल उर्फ जमाली ये यहाँ थाना सादतगंज में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद बदले हालातों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम एसपी ने आपको बता दें फोर्स संग फ्लैग मार्च किया है। जिले में धारा 163 प्रभावी ढंग से लागू कर दी गई। सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। वहीं कल जुमे की नमाज को अपनी अपनी मस्जिदों में ही पढ़ने का अधिकारियों के द्वारा निर्देश है। पूरी कवायद जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद के हालात को लेकर है। जिले के लिए डीएम एसपी ने संभल में फ्लैग मार्च किया है। पुलिस पीएससी आरआरएफ मार्च में मौजूद रहे। एसपी डीएम ने जुमे को अपनी अपनी मस्जिदों में लोगों से नमाज पढ़ने का निर्देश दिया। वहीं भीड़ भाड़ तथा गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कायम रखने के लिए आज जिलाधिकारी महोदय एवं मेरे द्वारा पीएससी एवं आरआरएफ और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से एक पैदल मार्च किया गया और एक संदेश देने का भी कार्य किया गया कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कार्य करेगा अथवा कोई भी अराजकता फैलाने की सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीरतम कार्यवाही और प्रचलित लाई जाएगी। कल जुमे की नमाज है, इसके मद्देनजर भी सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद संभल में धारा 144 ऑलरेडी लागू है और उसका जो भी बीएनएसएस का सेक्शन है उसके प्रेवलेंट सेक्शन के मद्देनजर किसी भी जगह पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के मुतवली मौलवियों मौलानाओं को कि वो भी अपने सभी मस्जिदों के माध्यम से संदेश दें कि किसी एक जगह इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जगह पे हज़रत अजमत उल उलूम के मौलाना द्वारा भी सभी से बताया गया है कि अपने अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और जो भी व्यक्ति अराजकता फैलाने का सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा। संवेदनशीलता के मद्देनजर क्योंकि कल जुमे की नमाज है तो इसी के अंतर्गत पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके अतिरिक्त हमारी पीएससी के द्वारा आरआरएफ के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है। 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे उनको भी पाबंद किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के थाना साइबर क्राइम और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले निजी बैंक कर्मी दंपति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए पति पवन कुमार और पत्नी रेणु मिलकर बीमा पॉलिसी का रिन्यूअल कराने के नाम पर ठगी करते थे। अभियुक्तों से 1,06,000 रुपये नकद बीमा, लोकपाल परिषद के फर्जी दस्तावेज व कुछ मोहरे बरामद करते हुए बैंक खाते में जमा 11,34,000 रुपये भी सीज करा दिए गए हैं। साथ ही पति पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को नोएडा तक दौड़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। के
कहने के लिए पति पत्नी दोनों निजी बैंक कर्मी थे, लेकिन वेतन से ऐशो आराम न पूरा कर पाने पर उन्होंने बैंक कर्मी के ठप्पे पेशे की बारीकियों और तकनीकी जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए साइबर ठगी को लग्जरियस लाइफ स्टाइल का जरिया बना लिया। नौकरी से गुजर न होने पर उन्होंने लोगों को ठगी का शिकार बनाना शुरू कर दिया। ये बताई थी कि उनको कहीं से डाटा मिला और वहाँ से फोन आया कि आपके काफ़ी पॉलिसीज आपकी लैप्स हुई हैं नॉन पेमेंट के ऊपर, उसको एक्यूमुलेट करके और बोनस वगैरह जोड़ के काफ़ी हैवी अमाउंट आपको रिफ़ंड मिल सकती है। अब जाहिर कोई भी रिफ़ंड का नाम सुनेगा भाई हमारे पैसे हैं मिलने हैं, तो मैंने इंटरेस्ट लिया उसमें। इंटरेस्ट लिया कहने इसमें कुछ चार्जेस पड़ेंगे जो कि आपको उस बेसिक रकम के साथ जुड़ के आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। तो फिर उसके आगे कहानी उन्होंने रेमिटेंस का कि ये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, ये फंड चार्जेस हैं, यूँ करके वो पैसे हमसे मांगते रहे और हम इसमें कि चलो रिफंडेबल है, कोई बात नहीं, रिफ़ंड हो जाएगा। तो वो एक्चुअली सब मामला दूसरा चल रहा था, पैसे निकलवा रहे थे वो सब। कितना पैसा आपसे 41 लाख कुछ रुपए लिए। लोगों ने बताया कि कहीं डाटा लेकर संबंधित लोगों ने फोन पर संपर्क किया। बताया कि कोविड काल में बीमा पॉलिसीज का रिन्यूअल न होने की जानकारी देकर मरा पैसा जिंदा करने का दावा किया, इसलिए अपनी बड़ी रकम प्राप्त करने के झांसे में आ गए। इसके बाद लगातार पैसे देते रहने के बाद भी कोई नतीजा न निकलने पर पुलिस की शरण लेनी पड़ी। पीड़ित के मुताबिक 41 लाख रुपए की ठगी तो ऑन रिकॉर्ड है, सही पूछो तो इससे कहीं अधिक रकम ठगी गई है। जनपद कानपुर की साइबर क्राइम टीम ने एसीपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य किया है। 15 दिन पूर्व एक वादी ने आकर के साइबर थाने पर 41 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के बारे में बताया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में उनकी बीमा पॉलिसी लैप्स कर गई थी क्योंकि वो पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट टाइमली नहीं कर पाए थे। उसके बाद उनके पास अभियुक्त का फ़ोन आया और उसने बताया कि वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के यहाँ से फ़ोन कर रहा है और ऐसा उसको इनकी पॉलिसी के बारे में जानकारी हुई है और इंश्योरेंस जो कंपनी है उसने अपनी इंटरनल ऑडिट के थ्रू इनका केस को निकाला और इसमें अगर ये इतना पैसा दे देंगे तो वापस से अपना जो इनका पेमेंट ड्यू है वो ले सकते हैं। इस प्रकार से इनको अपने झांसे में लिया और धीरे धीरे करके इनसे 41 लाख रुपए अपने अकाउंटों में डलवा लिए। पुलिस आयुक्त अपराध आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक दोनों ने मिलकर पिछले दिनों उन्नाव के बंथर के लेदर उद्यमी को चंगुल में फंसाकर 41 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट यहां साइबर थाने में दर्ज कराई गई थी। मुकदमे की विवेचना के दौरान दोनों अभियुक्तों दंपत्ति गिरफ्तार में आए। उन्होंने अभियुक्तों को शातिर ठहराते हुए बताया कि अभियुक्त अधिक समय अपनी क्रेटा गाड़ी से सफर करते रहते थे, जिससे लगातार लोकेशन बदलना पुलिस की सरदर्द साबित हो रहा था। आखिर में नोएडा जाकर 28 वर्षीय पति पत्नी को गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोगों को शिकार बनाने के लिए प्राइवेट डायरेक्टरी साइट से लोगों का डाटा खरीदते थे। खरीदे गए डाटा से रिन्यूअल के लिए निलंबित पॉलिसी धारक तलाश कर अपना शिकार बनाते थे। अभियुक्तों ने राजस्थान के 2 व्यापारियों को भी ठगने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 5,35,000 रुपए की ज्वेलरी, 1,06,000 रुपए नकद, 2 आईफोन, 4 एंड्रॉइड फोन, 2 कीपैड वाले फोन, 12 फर्जी मोहरे, 2 फर्जी ID कार्ड, 1 ATM कार्ड, 1 स्विप मशीन, 1 कार बरामद की है। इसके अलावा उनके बैंक खातों में जमा 11,34,000 रुपए सीज करा दिए हैं। बैंक खातों में सीज भी किया गया है। दोनों अभियुक्तों 28 वर्ष पवन कुमार व 28 वर्षीय रेनू को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। के न्यूज के लिए कानपुर से सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।